अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट को समझने के लिए। उसके लिए एक एग्जांपल दी हुई है इन टेबल। तो इस हम टेबल को पहले देखते हैं। टेबल में आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी कंज्यूम्ड का एक कॉलम है, उसके बाद देन वी हैव टोटल बेनिफिट। ये जो टोटल बेनिफिट है ये इन टर्म्स ऑफ योर सेटिस्फेक्शन या इन टर्म्स ऑफ योर हैप्पीनेस है। लाइक अगर मैं एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाता हूँ तो जो मुझे बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन या इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस मिलता है वो 25 है। और अगर मैं 2 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा खाता हूँ तो जो मेरा टोटल बेनिफिट हो जाता है वो 38 हो जाता है इन टर्म्स ऑफ माई सेटिस्फेक्शन। एंड एज आई कीप ऑन गोइंग कंज्यूमिंग मोर एंड मोर स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा, माई बेनिफिट जो है वो बढ़ता जाता है। So every time I consume a slice of pizza, I have to pay some price जो in terms of total cost आता है. So this column is representing the total cost. Every time I eat a slice of pizza, it cost me 5 rupees. If I consume 2 slices of pizza, it cost me 10 rupees, and then it keeps on increasing as I increase my consumption of slices of pizza. So how can I calculate the marginal benefit? The marginal benefit can be defined as this. So marginal benefit is the profit or the value incurred to a person on consumption of one extra unit of a good or a service, whereas marginal cost is the cost incurred to a person on consumption of one extra unit of a good or a service. So अगर मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाता हूँ तो उस एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा का जो मुझे बेनिफिट मिल रहा है वो मार्जिनल बेनिफिट होता है, और अगर उसकी जो कीमत अदा करनी पड़ती है उस एक्स्ट्रा यूनिट की वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट होती है। इसको हम और ज़्यादा देखते हैं, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पिज़्ज़ा स्लाइस कंज्यूम करने पर जो टोटल बेनिफिट है वो 25 है। सो इससे पहले मेरा कोई बेनिफिट था ही नहीं, सो मेरा मार्जिनल बेनिफिट भी 25 ही होगा, और जो कॉस्ट मुझे पड़ी वो 5 रुपीज़ है तो ये 5 रुपीज़ ही मार्जिनल कॉस्ट होगी। बट एज आई कंज्यूम वन एक्स्ट्रा unit of slice of pizza, the benefit goes up from 25 to 38, but the marginal benefit would be 38 minus 25. So I can write here 38 minus 25. This would be my marginal benefit of 13. So this 13 value is actually telling me the benefit on consuming this one unit, यानी second unit of जो मैंने slice लिया है उस पर जो मुझे benefit मिल रहा है ये वो उस unit की value या उस unit की benefit मुझे बता रहा है। Now if I go on to the consuming third slice of pizza, so my total benefit goes by 48, but my marginal benefit would be 48 minus 38. So I can write here 48 minus 38. So the answer would be 10. So this 10 is the benefit on consuming this third slice of pizza. ये third slice of pizza का जो benefit है वो 10 है, जबकि total benefit 3 slice of pizza खाने का वो 48 है, जबकि इस third slice का जो benefit है वो 10 है. So we can keep on going and calculate all the marginal benefits. So here on consuming fourth slice of pizza, the total benefit goes up to 56, but what would be the marginal benefit? Again we can calculate it. 56 minus 48. So as you can see, as the consumption goes up, the marginal benefit is going down. Here we can again calculate here. The marginal benefit would be 62 minus 56. Again the marginal benefit is going down and down.
सो यहाँ से आगे मैं एक जनरल फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ जिससे मुझे सारी कैलकुलेशंस मिल जाएंगी. दिस वुड बी माइनस दिस वैल्यू एंड here I go, एंड यहाँ से मैं अभी सारे फार्मूले को जनरली इस पे कंप्लाई कर देता हूँ. सो यू कैन सी here as I am consuming more and more slices of pizza, my marginal benefit is going down, and even on the 9th slice the marginal benefit is in negatives now. So question comes here, as a rational consumer where the consumption should be stopped. मैं कहाँ पर rational consumption करूँगा और किस पॉइंट पर आकर मुझे अपनी कंजप्शन जो है वो रोक देनी चाहिए जहाँ. सो ये आंसर हमें मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट देती है. सो अब अगर मार्जिनल कॉस्ट देखूँ, मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, वो हम टोटल कॉस्ट से निकाल सकते हैं. मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, द कॉस्ट इनकर्ड टू अ पर्सन ऑन कंजप्शन ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड और सर्विसेज. सो अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे देखें कि जो फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा वो 5 रुपीज़ का पड़ा, तो मार्जिनल कॉस्ट 5 रुपीज़ है. सेकंड स्लाइस जो है वो मुझे 10 रुपीज़ का पड़ा, लेकिन जो सेकंड स्लाइस की वैल्यू है वो कितनी है, वो यहाँ पर हम देखते हैं 10 माइनस 5 होगी. सो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5. सो सेकंड स्लाइस में मुझे 5 का पड़ा, थर्ड स्लाइस पे टोटल 3 स्लाइसेस मुझे 15 के पड़े, लेकिन थर्ड स्लाइस की मार्जिनल कॉस्ट अगेन 5 रुपीज़ है, क्योंकि 15 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर वही आ जाएगा. सो अगर मैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे और हम मार्जिनल कॉस्ट सारी कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस दिस अपर वैल्यू. सो अगर आप देखें सब के आंसर्स 5 ही आएंगे, और मैं यहाँ पे इसका फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ. सो यू कैन सी ऑल द मार्जिनल कॉस्ट. हर स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा जो है मुझे 5 रुपये का पड़ा, टोटल कॉस्ट 50 बड़ी 10 स्लाइसेस कंजप्शन पे, लेकिन हर स्लाइस की पीस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है, और हर स्लाइस का बेनिफिट जो है वो उसका मार्जिनल बेनिफिट कहलाता है. कॉस्ट तो सेम रह रही है, लेकिन जो मार्जिनल बेनिफिट है वो डाउन जा रहा है. रैशनली अगर हम देखें तो हमें कहाँ पर जो बेनिफिट की हमारा बेनिफिट जो है वो हमें कहाँ तक कंजप्शन करनी चाहिए. इसमें एक फार्मूला आप याद रखें कि मार्जिनल बेनिफिट जो है, मार्जिनल बेनिफिट, सॉरी इसको मैं थोड़ा बेहतर करता हूँ. मार्जिनल बेनिफिट जो है इट शुड बी ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट. अगर तो मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट तो हम कंजप्शन कर सकते हैं, वी शुड डू इट. बट इफ marginal benefit is less than marginal cost then we should not do it. ये आपने बात याद रखनी है. सो अगर हम इस कॉलम्स का एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि इस लेवल पर आकर हमारा मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट से कम हो जाता है. सो इससे ऊपर वाले लेवल तक हम कंजप्शन कर सकते हैं. सो आई बीइंग ए रैशनल, हम रैशनल कंजप्शन तब होगी जब आप 5th स्लाइस पर आके रुक जाएं और इससे आगे कंजप्शन ना करें. सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑफ मार्जिनल बेनिफिट एंड मार्जिनल कॉस्ट. उसको समझने के लिए आई होप आप इसको लाइक करेंगे. लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने नहीं किया.